Yes, sir. Tell me about yourself. Sir, my name is Akshay Jha. I belong from a village in Madhubani district of Bihar. I have resided in Mumbai. I have completed my education till class 12th from Mumbai itself, from Maharashtra State Board. Thereafter, I did my graduation and post graduation from BITS Pilani KK Birla Goa campus. And after graduation in 2018, I have been preparing for government exams. In this process, I have given 2 CDS exams, 2 CAPF exams, and 3 civil services prelims exams. Tell me about Madhubani paintings. Sir, Madhubani paintings are magnificent paintings, the origin of which is untraceable. It is said that it originated during Ramayana times, when during the marriage of Ram and Sita, Raja Janak asked the people of Mithila to paint Madhubani paintings on their walls. So this is very popular among women of the region, and quite recently it is gaining very popularity all over the world. We can see Madhubani paintings being painted on railway stations, trains, and Madhubani paintings is also used on garments, and it is sold all over India and world these days. And any famous painter from Madhubani paintings? Sir, recently we heard that Karpuri Devi died, who was a very famous Madhubani painter, sir. Okay. And you have done your education from Maharashtra. From till class 12th I have done from Maharashtra, and after that from BITS Pilani University. And which stream you are previously? So BITS Pilani, Birla Institute of Science and Technology. You have opted first choice CRPF. CRPF, Why yes. so? Sir, I guess out of all the forces, I found CRPF to have a wide range of work, and that is why I chose CRPF as my first priority. Which includes, first of all, it has all India posting, and it has work in almost all the dimensions, as it handles the internal security department, from crowd management to policing. It handles a wide range of services. Okay. Who is the DG of CRPF? Sir, I don't remember exactly, but I can take a guess. Sir. Sir, Mr. Maheshwari, I guess, sir, is the DG of CRPF. I might be wrong, sir. Just a guess. Do you know about the Cobra Battalion of forces? Yes, sir. So Cobra is a specialized battalion of CRPF. 10 battalions of CRPF are dedicated to Cobra. I'm sorry. 10 battalions of CRPF are dedicated to Cobra. Cobra is Commando Resolute Battalion, which is dedicated specially for Naxal areas. These are special forces specially trained for guerrilla warfare, sir. How guerrilla warfare is different from the traditional war? Sir, in traditional war we see two armies at two ends, whereas in guerrilla warfare there is no army. One person might be a suicide bomber, he might attack, or one person can create an ambush, or he might attack a lot of our armed personals. So this is how guerrilla warfare is different. Okay, and how guerrilla warfare is different from surgical strike? Sir, guerrilla warfare, surgical strike is a planned attack, wherein as we have heard, a government or an organization plans the attack, does it without any information to the public, whereas guerrilla warfare is not a planned attack. So it's like individual terrorism. A person, it's like lone wolf attacks, sir. But guerrilla warfare, but surgical strike is not a lone wolf. It is planned, and surgical strikes are mainly done for the security of the nation, whereas guerrilla warfare is not preferred for the security of the nation. Okay. Recently we are using two terminology. One is Naxalism, another is urban Naxalism. How they are related to each other?
Sir, both of these terms, Naxalism and urban Naxalism, they are related to each other in terms of their goal. They believe in overthrowing the government. In that terms, they are related to each other. So. And they provide necessary links to each other for the successful operations, for their successful operations. Okay. Uh, what is your hobby? Sir, I like to go for running sometimes, or trekking, but as long as I have been in this preparation, I am not very frequent with those things. Okay. You have mentioned web series. Yes, sir, I like to watch web series. How web series is different from the other regular serials or movies? Sir, regular serials or movies are generally telecasted on television, the satellite communication. But web series has emerged as a different platform, which we often call OTT platforms, over the top platforms, which you have heard names as Netflix, Amazon Prime, or Hulu. These are some of the web series platforms. So, in this way, web series are different from normal series. And what is the difference between web series and movies? Sir, movies is a 2 hours, 2.5 hours thing, but web series are necessarily long, at least one season comprising of more than 6 episodes. So this is the main difference. As if I see in theme, web series takes a lot of time to build the characters, whereas in movies everything has to be done in a short span of 2 to 2.5 hours. So a web series is more effective for the viewer to watch and have connection with the characters and the story. अच्छा Yes, sir. आपकी लैंग्वेज मैथिली है हाँ सर, मेरी लैंग्वेज मैथिली है सर. विद्याधर की 2 किताबों के बारे में बता सकते हैं? विद्यापति सर, दो बुक्स विद्यापति की. सर, किताबों के बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है सर. गाने मैंने सुने हैं सर विद्यापति की. इनका योगदान क्या है विद्यापति? सर, विद्यापति के कारण मैथिली भाषा बड़ी प्रचलित हो गई उस समय. उसके पहले उस तरफ की भाषा संस्कृत या अपभ्रंश हुआ करती थी, और विद्यापति के जो कविताएं थी वो मैथिली के कारण मैथिली उस एरिया में बड़ा प्रचलित हो गया सर. मैथिली को 2 पार्ट्स में लिखा जाता है, 2 तरीकों से लिखा जाता है, कौन से लिखा सर, मैथिली का एक स्क्रिप्ट होता है तिरहुत, और दूसरा स्क्रिप्ट सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो शायद मगही होता है सर. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, इसका ज्ञान नहीं है सर मुझे. आई एम सॉरी सर. बी है इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ सर. सपोज मेरा फ़ोन खराब हुआ है और मैं मार्केट जा रहा हूँ, 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक दुकान है, एक इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे किस में जाना चाहिए? सर, आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाना चाहिए, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जो है वो फ़ोन में, मान लीजिए आपका अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, कोई नेसेसरी कनेक्शन है जो छूट गया है, तो वो सारी चीज़ें भी हैंडल कर पाएगा. और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होगी उसकी इतनी स्पेशलाइजेशन दोनों फील्ड में नहीं होगी. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड होता है वो डील करता है नेसेसरीली चिप्स से रिलेटेड, जो चिप सेट होता है, और इलेक्ट्रिकल जो होता है वो मशीन्स और जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जैसे कोई बैटरी क्यों काम नहीं करती, तो इस बारे में भी वो डील करता है. चिप बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल का यूज किया जाता है, ये क्या होता है? सर, रेयर अर्थ मेटल्स, इनको केवल नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं और ये हर जगह नहीं पाए जाते. कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? सर, सबसे ज़्यादा ये चाइना में पाए जाते हैं, फॉलोड बाय इंडिया. तो हम ज़्यादातर रेयर अर्थ मेटल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं सर. अभी रिसेंट में किसी भारतीय IIT या NIT किसी संस्था ने देसी चिप, अपना जो स्वदेशी चिप है उसको बनाया, उसको क्या नाम दिया गया?
सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम सॉरी सर. अच्छा, जो इसमें कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है सीयू बैंड और तमाम प्रकार के बैंड को सैटेलाइट्स में यूज किया जाता है. माइक्रो प्रोसेसर्स. हाँ, बैंड की यूज होती है ना, सीयू माइक्रो प्रोसेसर बैंड होता है, एक्यू बैंड होता है. इनमें डिफरेंसेस क्या है? सॉरी सर, इस बारे में अभी जो रिसेंट में जो हमारा भेजा गया हो सैटेलाइट, उसमें कौन सा बैंड यूज किया गया होगा कम्युनिकेशन के लिए, उसको यूज किया जाएगा? सर आप बैंड की बात कर रहे हैं, सी यू बैंड, के यू बैंड, जो सैटेलाइट्स में यूज़ होती हैं. सीयू बैंड मैंने आपको बोला. हाँ सर, सी यू बैंड. सर इसके रिलेटेड आई एम सॉरी सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि जैसे सपोज एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसमें कौन सा बैंड सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा? इम्पोर्टेंस किस बैंड की? सर अभी जो रिसेंटली जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें सी यू बैंड ज़्यादा होते हैं और के यू बैंड कम होते हैं. और इनफैक्ट के यू बैंड अभी कुछ पिछले 2-3 सैटेलाइट से लॉन्च किया जा रहा है, तो उसमें सी यू ज़्यादा है सर. ऑल्दो सर इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि सी यू बैंड, के यू बैंड डिफरेंट कैसे होते हैं. हाँ सर. सर एमएससी केमिस्ट्री और बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? सर नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर जीनोम एडिटिंग में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था सर. किसी कोई ऐसा इंडियन ओरिजिन जिसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला हो? हाँ सर, पहले मिले हैं. जेसी बोस को आई गेस मिला हुआ है, और एक और थे सर. सर आई एम सॉरी, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. 10-15 साल पहले. सॉरी सर. 10-15 साल पहले भी मिला है. आई एम सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर. प्लैंक थ्योरी क्या होती है? फ्लाइट थ्योरी. प्लैंक थ्योरी. सर प्लैंक थ्योरी केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में. सर प्लैंक थ्योरी एक कांस्टेंट होता है जो एनर्जी की इक्वेशन में हम बाकी के वेरिएबल्स को कंसिडर करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे एनर्जी का एक अगर एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज़ करें वेवलेंथ और वेवलेंथ के टर्म्स में, तो उसका फॉर्मूला होगा hc/λ. यहाँ पे h जो होता है वो एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है सर. D2O डिटोरियम ऑक्साइड. हाँ हरे वाटर का एटॉमिक वेट कितना होता है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी सर. क्या आप इस प्रोसेस को बता सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसे सूर्य को एनर्जी मिलती है, उसका एक फार्मूला होता है, उसको आप बता सकते हैं? सर 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं हीलियम बनने के लिए सर. इसमें जो हाइड्रोजन करेंगे तो हीलियम बन जाएगा? हाँ सर, इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी H1 + 1H1 = 2H एट द सेम टाइम. उसमें वो हीलियम में वो और कम होता है सर, प्रोटॉन्स कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होता है. हाँ 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 हाँ. तो फिर ये H4 का होगा. कैसे कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन हीलियम में, ये प्रोसेस में ये फार्मूला है +1. सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर. बिट्स पिलानी की स्थापना कब हुई थी? कब एस्टेब्लिश किया गया था बिट्स पिलानी? सर बिट्स पिलानी एज ए स्कूल 1902 में इस्टेब्लिश हुआ था, और एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था सर. लास्ट ईयर किसी एक केमिकल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मौत बिहार में हुई, लीची खाने से. केमिकल की वजह से? लीची में पाए जाने वाले किसी केमिकल की वजह से कोई तत्व है, एलिमेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मौत हुई? सर जापानीज़ एंसीफेलिटिस के बारे में सुना था मैंने सर. लीची खाने से मौतें हुई हैं लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा. सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, आई एम सॉरी सर.
सर। यस सर। अक्षय, एक बात बताइए, अक्षय आपका नाम है, एक बहुत फेमस एक्टर है अक्षय कुमार, हाँ सर। आप दोनों में कोई सिमिलरिटी है? सर वो सिमिलरिटी बता दीजिए जो आप में होंगे। सर मुझे फ़िट रहना बहुत पसंद है एंड आई लव द वर्क आई डू। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार और मुझ में मिलती जुलती हैं सर। अच्छा, यस सर। बिहार से हो? हाँ सर। सर मैं बिहार में मेरा जन्म स्थान है और मैं मुंबई में रहा हूँ सर। ऑपरेशन माँ क्या है? ऑपरेशन माँ, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में। सर ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर मैं गैस लेना चाहूँगा सर। सर ये पोषण अभियान के रिलेटेड कुछ है सर, बट मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा कि ये क्या है। और ऑपरेशन प्रहार? सर ऑपरेशन प्रहार एक मिलिट्री का एक्सरसाइज है सर, जो कि मेरे गैस के अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार में किया जाता है ट्राई सर्विसेज का। सर ने एक क्वेश्चन किया था, तो आपने एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसका मतलब कितने लोगों का वो लिया जाएगा, इसमें कुछ ऐसा आइडिया है? सर 1000 1000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा सर इसमें। पर्टिकुलर एरिया का या पूरे कंट्रीज का? सर ये एक डिसीज़ ओरिएंटेड है सर। वो कैंसर के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी सैंपल्स लेंगे उस रिलेटेड लेंगे सर। अच्छा सर, ये बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, क्या क्या उद्देश्य है इस मिशन का? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सर, और गवर्नेंस को बेटर करना, ये एक उद्देश्य है। जो बेसिक सर्विसेज हैं इनको हर घर तक पहुंचाना, ये भी एक मिशन है। और हाउसिंग फॉर ऑल सर, ये भी उसी का एक पार्ट है सर। सर मैं अभी इतने ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। जल शक्ति अभियान? जल शक्ति अभियान सर, ये भी एक नया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ये प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें पाइप टू वाटर कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे हर घरों में। अभी पाइप टू वाटर कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे हर घरों में सर। अभी फ़िलहाल ये रूरल एरियाज़ के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, इसको आगे जाकर अर्बन एरियाज़ में भी किया जाएगा सर। हुतू विद्रोह यमन में? हुतू विद्रोह, जानते हैं? हाँ सर, हुतू ट्राइबल्स और एक किगाली शायद ट्राइबल्स थे, हुतू एक और तुत्सी, हुतू और तुत्सी ट्राइबल्स के बीच में वहाँ पे एक रिबेलियन हो गया था सर, एक कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स हो गए थे सर उसमें। विलियम फ्रिज? विलियम फ्रिज सर, ये मैंने नाम नहीं सुना है सर। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019, इसमें न्यू क्या क्या है? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो करिकुलम होता था जूनियर केजी से या नर्सरी से 12th क्लास तक का, ये पैटर्न बदल दिया गया है सर। अब ये सिस्टम हो जाएगा 5+3+3+4। एक तो ये पैटर्न है सर। दूसरा ये कि 11th-12th में हमें एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी कि आप साइंस लेंगे, आप कॉमर्स लेंगे या आप आर्ट्स लेंगे। इस डिफरेंस को हटा दिया गया है सर। अब ये डिफरेंस नहीं रहेगा, हर बच्चा कोई भी स्ट्रीम हर चीज़ पढ़ पाएगा। एक और चीज़ ये है सर कि जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता था, पहले 4 साल के प्रोग्राम और 3 साल के प्रोग्राम अलग होते थे। अब न्यू पॉलिसी में ऐसा कर दिया गया है कि सारे ग्रेजुएशन के प्रोग्राम 3 साल के होंगे और जो चौथा साल होगा वो रिसर्च के लिए डेडिकेटेड होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा बीटेक है तो उसमें चौथा साल रिसर्च ओरिएंटेड होगा। और एक और एडिशन है कि एमफिल का जो प्रोग्राम होता था, जो लोग ग्रेजुएशन की बात करते थे पीएचडी से पहले, उसको हटा दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है सर। तो अब लोग ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते थे। पहले भी हालांकि ले सकते थे, पर पहले लोग एमफिल करना प्रेफर करते थे एक थीसिस या एक रिसर्च के लिए। अब वो
ग्रेजुएशन के ही 4th ईयर के पार्ट में कर दिया गया है सर। इसके अलावा सर टीचर्स ट्रेनिंग, नया करिकुलम लाना, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है और एक वोकेशनल कोर्सेज़ की भी बात की जा रही है जिसमें बच्चे बहुत सारे आर्ट्स सीख पाएंगे सर। आपने मदर इनकम शुरू किया है। हाँ मदर सर। इनकम हाँ ये सर। जीडीपी में काउंटेबल है? हाँ सर, ये काउंटेबल होगा सर, काउंटेबल होगा सर। आपने मदर को बताया है हाउस वाइफ, हाँ सर। कि अर्निंग फील्ड है आपने दिखाया। हाँ सर। ठीक है सर। सर मेरी मदर ट्यूशन्स लेती हैं सर, तो उसके रिलेटेड सर। वो तो टीचर थी ना, तो हाउस वाइफ कैसे? पर सर वो कोई एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, तो इसलिए मैंने हाउस वाइफ लिखना चूज़ किया सर। वही पढ़ानी है घर पे? घर पे सर। घर पे 3 लाख। और सर बाकी इंटरेस्ट पेमेंट्स ये सारी चीज़ें और सब मिला जुला के जो ITR फाइल होता है सर, उसके हिसाब से मैंने पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये ठीक अमाउंट है, ये लिख दो। आपको हो गया है, आप माइक्रोफोन निकाल दीजिए।